Assalamu alaikum, everyone. This is Amar bin Salim. Welcome to another episode of Out Loud with Amar. This is episode 9. Again, I'm deeply privileged and honored to be in the presence of another very, very important guest, co founder of a significantly important clothing retail outlet in Pakistan, heavily dependent on e commerce, export leftovers. Thank you so much, Omar, for joining us today. Thank you, Mawar, for having me. It's a privilege to be talking to you about myself and the company. The player is all ours, indeed. Omar, just a bit about your background. You're from Lahore, if I'm not wrong, or correct me if I'm not. No, I'm not from Lahore. I'm from Faisalabad, and I started the company in Faisalabad in I, 2013, and then I moved to Lahore in 2020. Acha, okay, recently. I'd say recently. Very recent. So, Umar, कैसा था फैसलाबाद में मतलब then you did your O levels and A levels there and then you went. हाँ जी, बिल्कुल. O levels, A levels, Faisalabad, Beacon House, and then I went to my undergraduate from Edinburgh in Scotland, और फिर मैं वापस आ गया. फिर मैंने ये कंपनी शुरू की. उसके बाद फिर 2015 में I went to do my masters from London Cass Business School, और फिर मैं 2016 में वापस आ गया. फिर 2016 से लेकर 2020 तक फैसलाबाद. Then I moved to Lahore, so it's been a year and a half because I moved in like September 2020. अच्छा अच्छा अच्छा. And how was it मतलब उस time पे फैसलाबाद जो है, what are your memories of नहीं, Faisalabad is a good place to start out, but the thing is it is a difficult place. For example, like we were a retailer, we were an online only store, and it was hard for us to find, for example, models ही नहीं मिलते थे. आपने कोई photo shoot कराना, you couldn't find anyone. You wanted to do some videography, you wanted to get some people, you wanted to आप कुछ कर ही नहीं सकते थे. कोई बंदा आने को तैयार ही नहीं था फैसलाबाद. तो तो it was फैसलाबाद very की hard. मार्केट तो यानी डिपेंडेंट थी जैसे मतलब हमारे पास हमेशा से इमेज है ना फैसलाबाद का कि वो तो इंडस्ट्रियल एरिया है. हाँ, तो वो इंडस्ट्रियल ही है ना. So it's good for manufacturing, but if you talk about marketing and other services, it's a difficult place, क्योंकि आपको बंदे नहीं मिलते ना इस तरह के, because people are in tune कि जी हमने तो मैन्युफैक्चरिंग या इंजीनियरिंग या इस तरह के काम करने, तो people are not really मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो क्रिएटिव नहीं है, लेकिन ये क्रिएटिव स्किल्स की मार्केट ही नहीं है उधर. तो अगर लाहौर या फैसलाबाद में भी किसी बंदे ने कोई इस तरह का काम करना है, तो he will move out. He राइट. wouldn't stay in Faisalabad. So if it's a videographer, he wouldn't stay in Faisalabad. But if it's a product photography guy, he wouldn't stay in Faisalabad because उसको काम ही नहीं मिलेगा ना. तो बंदे निकल जाते हैं. Right. Acha, Umar, you were saying that you did your OA levels in Faisalabad and then for your undergrad you went to the University of Edinburgh. What made you decide to come back? Yeah, हमेशा से ही दिमाग में था and then start a company of your own. Because I was just reading your यार book, found that you co-founded this company with your dad. हाँ हाँ. तो पहले तो यार ये था कि because I like फैसलाबाद काफी इस तरीके से तो बोरिंग शहर ही था, तो मुझे एक मौका मिला जब मैं पढ़ने के लिए गया निकलने का, तो मेरा तो वापस आने पे ही नहीं दिल था. And then my father was like, "What क्या कर रहा तू, मतलब why are you working, why are you just doing jobs, you should come back and I have a company, so join me." तो reluctant था, साल 1.5 साल तो वापस आने में लग गया था. And then I came back and then I was like, okay, अब मैं क्या करूं, because आपको अपनी पोजीशन भी नहीं मिल रही थी ऑफिस के अंदर, फैक्ट्री में आगे आप मतलब I wasn't really willing to come back. तो फिर जब आया तो देखा कि यार अगर कुछ करना है तो अपॉर्चुनिटी किस चीज के अंदर है, तो अपॉर्चुनिटी हमें रिटेल के अंदर नजर आई एट द टाइम. I wouldn't say e-commerce but retail because it was booming at that time. Right. तो बस रिटेल ब्रांड बनाने का सोचते सोचते ही वो रिटेल ब्रांड तो नहीं बना, लेकिन वी हैड अ लॉट ऑफ लेफ्ट ओवर सिटिंग इन आवर वेयरहाउस एंड वी जस्ट डिसाइडेड कि ओके लेट्स ट्राई टू सेल इट ऑनलाइन. और एक नई चीज ही है ना, नहीं चलेगा खैर है, बंद कर देंगे. बिकॉज शॉपिफाई यूज्ड टू चार्ज ओनली $19 बैक इन द डे, जो बेसिक प्लान था तब $19 में. Okay. तो वेबसाइट तो $19 में बनी है, डेवलपर तो कोई था नहीं, डेवलपर तो मैं खुद था. बिकॉज आई वाज हमने शॉपिफाई का स्टोर लिया, उसके बाद खुद बैठ के सारा मेन मेन्यू सारी हर चीज खुद की है. तो वो आप ये समझ लें कि मतलब it was kind of like me experimenting with things. It wasn't like we hired people to do that, because back in 2013 I feel कि there were hardly any shops on Shopify in Pakistan. शायद कोई भी नहीं थी.
मे बी वी वर द फर्स्ट वन, आई डोंट नो, मैं ऐਵੇਂ ही कह रहा हूँ, लेकिन मैं किसी को भी नहीं जानता था उस टाइम पे तो यार। और फिर खुद ही सीखा, खुद ही मतलब इधर उधर से टकरे टुकरे मार के, यूट्यूब पे वीडियोस देख के, फोरम्स पे बातें करके वी स्टार्टेड द कंपनी, एंड वी नेवर थॉट दैट इट्स गोना बिकम व्हाट इट इज नाउ, बिकॉज़ वी ओनली फेल्ट दैट कि हमने जो अपनी फैक्ट्री का लेफ्ट ओवर है, जो मेरे वालिद साहब की फैक्ट्री के गारमेंट्स बचे हुए थे, हमने उसको बेचना है, बस हमारा मिशन ये था। और इट वो वाज नेवर जो आपका काम था वो सारा इस पे क्या कहते हैं इसको, सारा फैशन रिलेटेड ही था, या मतलब कपड़े जो भी नहीं, हमारे ज्यादातर ओके, सो वी स्पेशलाइज इन अ लॉट ऑफ वर्क वेयर। सो फॉर एग्जांपल यूके यूएस के अंदर हम लोग यूनिफॉर्म्स बनाते हैं, तो वी यूज्ड टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर केएफसी, फॉर मैकडॉनल्ड्स, फॉर फोर्ड, उनकी फैक्ट्रीज की जो पोलो शर्ट्स थी, टी शर्ट्स थी। तो हम लोगों का फोकस, इट स्टार्टेड ऑफ एज अ फैशन एक्सपोर्टर, के फैशन के गारमेंट्स को एक्सपोर्ट करते थे, बट ओवर टाइम वी फेल्ट कि हमारी स्ट्रेंथ रिपीट ऑर्डर्स में, बड़े ऑर्डर्स में, क्योंकि अब आपको पता फास्ट फैशन का टाइम आ गया, तो ज़ारा और ये जो बड़े ब्रांड्स हैं इतनी बड़ी रन्स नहीं देते। ये कहते हैं अच्छा जी 5000 टी शर्ट, फिर उसके बाद फिर कलर चेंज, साइज चेंज, फिर ये छोटी छोटी रन्स करते हैं, एंड दे वांट लाइक क्विक शिपमेंट्स, मतलब आप बनाओ, आप 15 दिन के अंदर शिप करो। तो वी स्पेशलाइज के हम बड़े ऑर्डर्स करें, एक ही रन हुए, उसमें टाइम एक दफ़ा ही हुए, सारा कुछ एक दफ़ा हो, तो उससे हमारी कंपनी की, मेरे वाले साहब की कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम थी। तो we used to work with fashion retailers, no not fashion retailers, ये यूनिफॉर्म टाइप कंपनीज के साथ ज्यादा काम करते थे, लेकिन उसमें ये भी होता था ना कि बेसिक पोलो शर्ट बन गई है, क्योंकि बहुत सी कंपनीज यूके के अंदर मॉडल ये है कि, सो फॉर एग्जांपल यू हैव अ फ्लावर शॉप और यू हैव आई डोंट नो इलेक्ट्रिकल शॉप है, तो आपके पास 50 बंदे काम करते हैं, तो यू वुडंट ऑर्डर समथिंग फ्रॉम मी, तो यूके में ही बंदे बैठे हो, कहते हैं अच्छा जी 50 पोलो शर्ट लेनी है, आप हमें ऑर्डर करें, हम एम्ब्रॉयडरी करके आपको दे देंगे। So they buy from us, they stock it in UK and then deliver it to your doorstep, but it wouldn't have your print or embroidery. And today your business has मतलब grown a lot, मतलब मैं एक्सप्लोर कर रहा था एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स को, एंड देन मैं याद कर रहा था कि जब अराउंड 2014 जब मैंने पहली दफा जब आई केम अक्रॉस योर मॉडल, जो बिजनेस उस वक्त क्या लिमिटेड सी चीजें थी, एंड आप मतलब ऑटोमोटिव का भी एक सेक्शन है, यू हैव अ पार्टनरशिप विद पार्क व्हील्स एंड अदर कंपनीज एज वेल। तो ये कैसे फिर आइडिया है कि यार हमने बिजनेस किस तरह ग्रो करना है? Yeah, I think the best thing about the company was that it was open for experimentation. आज भी मुझे खैर काफी लोग कहते हैं कि जी आपने तो वेबसाइट के अंदर दुनिया जहान की सारी चीजें डाल दी, so it has lost the focus of being export leftovers. But I would like to explain it to everybody, the audience, कि भाई अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट ना करता तो ये जीन्स नहीं आनी थी, ये जूते नहीं आने थे, ये जुराबें नहीं आनी थी, ये टॉवल्स नहीं आने थे, ये बेडशीट्स भी नहीं आनी थी, क्योंकि हमारा प्राइमरी फोकस तो मेरे वालिद साहब की कंपनी थी। तो मेरी वालिद साहब की कंपनी में तो बेडशीट्स नहीं बनती और जूते नहीं बनते और जीन्स नहीं बनती, तो वी एक्सपेरिमेंटेड, वी ट्राइड, ओके लेट्स ट्राई इट आउट। मेरा दोस्त, मतलब ये हमने इसकी भी कहानी ये है कि एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर में पहली दफा बाहर की शिपमेंट इस तरह आई थी कि within 3-4 months of starting the company there was a copycat company in फैसलाबाद, जिसका फेसबुक पे मुझे नजर आया है कोई ग्रुप या कुछ इस तरह कि जी एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स। तो मैं लाइक बीइंग अ 23-24 ओल्ड वेरी feisty young guy, मैंने तो कहा कि मैं तो उसका जाके सर फाड़ देना है, इसने मेरे ब्रांड की कॉपी की है। तो मुझे नंबर मिला, मैं उसको जाके मैं मिलने चला गया। तो जब मैं मिलने चला गया, गुस्सा तो मुझे बहुत था, लेकिन आई वेंट टू हिज स्टोर। तो वो जिन फैक्ट्रीज के साथ काम कर रहा था उसका एक रिटेल स्टोर भी था, तो आई फेल्ट कि यार इसके साथ लड़ाई करने का मुझे फायदा तो कोई होना नहीं है, तो व्हाई डोंट आई पार्टनर विद हिम, एंड देन वी स्टार्टेड बाइंग स्टफ फ्रॉम हिम, जो किसी और फैक्ट्री से चीजें उठाता था, जो कि मैंने आपको बताया कि मेरे वालिद साहब की फैक्ट्री इतनी फैशन वाली चीजें नहीं बनाती थी, बट दिस अदर कंपनी, जो वो बंदा था उसके पास बहुत फैशन वाली चीजें थी। तो मैंने कहा यार ये इस तरह अगर मैं ये ना करता तो फिर अब येलो में आपको बहुत लिमिटेड सी वैरायटी, बेसिक टी शर्ट, बेसिक पोलो शर्ट ही मिलनी थी। तो इसी तरीके से फिर एक मेरा एम्प्लॉय ही था, उसने उसके वालिद साहब, उसके कोई मामू ने स्टेशनरी की दुकान बनाई, एंड द कंपनी वाज नॉट डूइंग वेल, तो ही वांटेड टू शट इट डाउन। तो उसने कहा कि यार आप ना ये मेरी स्टेशनरी मेरे मामू की है, ये सारी खरीदो। तो वो कोई 10-12 लाख रुपए की वैल्यू बन गई। मैंने कहा मैं क्यों खरीदूं भाई, मेरे ये एक एक्सपर्टीज ही नहीं है। उसने कहा अच्छा सर आप ना खरीदें, लेकिन आप ऐसा करें वेबसाइट पे लगा दें, बिक गई तो पैसे दे दें, नहीं बिकेगी तो कुछ नहीं होगा। खैर
and we started, so we introduced this business model के ओके बिक गया तो बेच आपको पैसे मिल जाएंगे, नहीं बिकेगा तो पड़ा रहेगा, जो कि सेल बेसिस जिसको कहते हैं। तो ये सारी एक्सपेरिमेंटेशन ही है, अगर ये हम ना करते तो कभी भी नहीं होना था। ऑटोमोटिव का भी यूं ही हुआ, पार्क व्हील्स approached us and we were like okay we want to do that, तो वो भी इसी तरह था कि we had an open mind कि okay we want to try something new। हम लोग इतने रिजिड नहीं है। कंपनी के अंदर अगर कोई प्रपोजल आता है मेरे पास आता है, मैं yes no करता हूँ, फॉरन करके खत्म होती है गेम। वरना मुझे लगता है कि a lot of the companies are very bureaucratic कि एक अगर उनके पास प्रोसेस आया तो वो 6 महीने तो लटका के रख देते हैं, घूमता ही रहेगा, वो काम नहीं होगा उसमें। तो ये इधर क्योंकि it's a small business team, ऑफिस के अंदर तो मेरा ख्याल 20-25 लोग ही हैं, क्योंकि वी हैव अ ह्यूज इन्वेंटरी और वेयर हाउस में काफी बंदा है और प्रोडक्ट क्रिएशन, इंस्पेक्शन, बट जो मेन मैनेजमेंट है वो तो 20-25 बंदों के अंदर बस है, तो उन्होंने ही डिसीजन लेना और वो आराम से हो जाए। If I were to ask you कि as compared to your other clients, your father's businesses, other clients, and you were telling कि मतलब you were making workwear for numerous international organizations. आज export leftovers का जो business आ रहा है, how big is that when you know compute it and put it in front of the other clients for your father's business? I would say अच्छा, अब जो फैक्ट्री से हमें गारमेंट्स आते हैं तो we would be maybe ranked second or third आराम से। जो मेरे वाले साहब की कंपनीज हैं, मतलब ये within a couple of years we will be the number one customer for my father's company, but right now we are number second and third। और उसमें एक वजह है, उसमें वजह ये है कि हम लोगों की फैक्ट्री कहती है कि जी हमने 50,000 टी शर्ट बनानी। अब ELO की कैपेसिटी 50,000 टी शर्ट बेसिक की नहीं है। पाकिस्तान में वो एम्ब्रॉयडरी भी चाहते हैं, प्रिंट भी चाहते हैं, ये सारा कुछ चाहते हैं। तो एक रिजिडनेस मेरी ऑफिस के एम्प्लॉइज की भी है, क्योंकि वो आसान काम है ना यार, एक्सपोर्ट का काम तो आसान है, आई चीज बनाई बेसिक भेजी जो हम लोग का काम है वो कहते हैं। क्योंकि मैं कहता हूँ कि भाई मेरे लिए एक ऑप्टिमम प्रोडक्ट है 500 पीस, वो फैक्ट्री के लिए ऑप्टिमम नहीं है। मैं कहता हूँ अगर एक टी शर्ट है, ये एक डिजाइन है, मैं 500 बेच सकता हूँ, अगर आपने उसी डिजाइन के मुझे 5,000 पीस दे देने तो मैं नहीं बेच सकूंगा, मैं लटक जाऊंगा यार। Yes, sir. तो वो एक आई थिंक द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इज बेसिकली मेंटालिटी, आइडियोलॉजी, वो जब तक इन सिंक नहीं होएगा तब तक आई फील कि हम लोग नंबर 1 नहीं हो सकते, क्योंकि कंपनी का भी एटीट्यूड चेंज होने वाला है। तो दैट्स व्हाई a lot of the times we have realized कि अच्छा चलो यार फैक्ट्री में रिजिडनेस है ना, तो छोटे मोटे यूनिट्स मिल जाते हैं फैसलाबाद के अंदर, छोटे मोटे स्टिचिंग यूनिट्स हैं, हम उनके पास चले जाते हैं और उनको कहते हैं आप हमें बना के दो, कपड़ा हम देते हैं, आप हमें स्टिचिंग करके दो। बिकॉज मैं एक बिजनेस मॉडल अपने वालिद साहब का नहीं चेंज कर सकता, इट्स अ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल, ही इज मेकिंग मनी, मैं जाके टांग अड़ाऊंगा नहीं जी भाई मैंने ये करना। तो I want to have a win-win situation for everyone, and it's not a win-win situation if you're going to change the whole system of the factory। तो वो मुझे ये फील होता है, पर हम भी इतने पंगे नहीं लेते उधर, नहीं लेते। अच्छा मैं उमर, I'm just curious कि मतलब you would have launched a business जब आप वापस से undergrad सर अपना undergrad करते थे 2011, and then you said you took another year just trying to understand what you wanted to do or not। फिलहाल 2012 के अराउंड कहीं लॉन्च किया होगा एक्सपोर्ट लेफ्टओवर 13 में। so at that time मुझे थोड़ा सा भी अगर मैं याद करूं, उस वक्त तो ना डिजिटल मार्केटिंग अभी स्टार्ट हुई थी, डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स का बस अभी बिल्कुल शुरू वाला सीन था सारा। तो what do you remember was that one biggest challenge that you were facing at that time which people do not have to face today if they want to enter a business like yours? I would say कि logistics were super inefficient। एक तो रेट्स बहुत ज्यादा थे। आप अभी तो सीओडी का पैकेज मेरा ख्याल है अगर नया बंदा भी है जिसके शायद दिन के 5 पैकेज हैं, उसको 150, 170, 200 में शायद रेट मिल जाए। हमें तो 300, 350 प्लस सीओडी का कहते थे। अच्छा जी 1000 रुपए का ना, तो हमने तो 5% इसकी सीओडी वैल्यू भी लेनी है। मतलब क्रेजी नंबर्स। मतलब आप कहते थे कि यार मैंने 500 रुपए की अगर टी शर्ट बेचनी है तो कोरियर वाले को आप 400-500 रुपया दे रहे थे, क्योंकि रेट 300 प्लस होते थे तब। और फिर इनएफिशिएंसी उनकी इस तरह भी होती थी कि दे वुड कम टू योर ऑफिस और आपके पास अगर फॉर एग्जांपल चलो 5-10 का तो मैं नहीं कहूँगा, अगर आपके पास 50 पार्सल्स हैं तो उनका बंदा आता था, वो आपका इंडिविजुअली हर डब्बे के ऊपर
आपने उसका एड्रेस लिख दिया बंदे का, उसने एक पर्ची होती थी उसके ऊपर उसने उसका एड्रेस लिखना पर्ची के ऊपर, फिर उसके ऊपर चिपकाना पार्सल के ऊपर, और फिर उसके बाद उसका वजन करना और वजन करके उसने पार्सल रखना। एंड दिस होल प्रोसेस इवन इफ इट वाज 50 ऑर्डर्स इट वाज गोना टेक एन आवर, 1 घंटा उसने, क्योंकि पर्ची पे सारे एड्रेस नाम ये वो सारा कुछ लिखना है, वजन करना और फिर उसने अपनी गाड़ी में रखना। तो मतलब आप कहते थे अगर मेरी 6 बजे छुट्टी होती है तो मुझे 4:30 बजे तो अपने सारे पार्सल इकट्ठे करके पैक करके रखने थे, मेरा तो 1.5 घंटा जाया होता था। और ये सिस्टम होता था। आप कुरियर वाले को कहते थे दे डिडंट हैव एन एपीआई, था ही नहीं कोई, वो कहते थे कंप्यूटर से किस तरह आ जाएगा सर, हमें क्या पता। अच्छा मैं ये, क्योंकि मेरा भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैं ये समझता था कि यार ये अगर कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन आ गई है कस्टमर की एड्रेस की सारा कुछ, तो यार वो एक प्रिंट मारे कर दे, कुरियर कंपनी ने ये डेवलप नहीं आपको करके दिए। तो वी अच्छा, और मजे की बात है कि हम लोगों ने कहा, मैं आपको ये भी बताता हूँ क्योंकि मैं अब क्योंकि दराज तब भी नंबर 1 ही था, तो हमारा कुछ कांटेक्ट वगैरह दराज के साथ भी था, तो दराज से हम पूछते थे। दराज यूज्ड टू, उनके अगर 100 ऑर्डर है 500 ऑर्डर है, वो एक एक्सेल की शीट बनाते थे, वो एक्सेल की शीट इनके पास जाती थी, ये मतलब अगर उनके 500 ऑर्डर है ना, शाम 4 बजे उन्होंने 500 ऑर्डर्स की एक शीट बनानी, वो शीट जाती थी लेपर्ड्स के दफ्तर, लेपर्ड्स के दफ्तर उसके बाद उसकी पिक स्लिप्स बना के इनको दोबारा से ईमेल करते थे और फिर वो प्रिंट करके ये लगाते थे। मैंने कहा वो भी बड़ा इनएफिशिएंट मॉडल है। एग्जैक्टली, मतलब वो एक लिफ्ट यहाँ से बन रही फिर वहां जा रही है फिर वापस हाँ आ से, रही है। हाँ फिर वापस आ रही है। फिर मैंने कहा यार ये इतनी बड़ी, मतलब दराज वाज द बिगेस्ट देन, दराज भी ये करता था। वो कहते थे सर जी फिर ये कर ले। मैंने कहा ये तो मैंने नहीं करना। सो वी डेवलप्ड एन एपीआई व्हिच वाज लाइक ओके, जो एड्रेस हमारी वेबसाइट के ऊपर है वही इनके एपीआई में जाएगा, इनकी ऐप के साथ लिंक करेगा और उसके बाद सारे स्टेटसेस अपलोड होंगे। हमने अपने सीएन नंबर्स इनसे जनरेट करवाए और वो फिर लिस्टें बनी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने भी एक डेवलपमेंट ये की, फिर भी ये जब बन गया तो इनका बंदा आता था, कहता था सर जी अब वजन तो हमने करना है। फिर हम लोगों ने हर आइटम का वजन वेबसाइट में डाला कि अगर आपने एक टी शर्ट ली इसका 300 ग्राम वजन है, एक पोलो शर्ट ली उसका 350 है, एक कप लिया उसका 200 ग्राम है। सो वी स्टार्टेड पुटिंग ऑल द वेट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑन द वेबसाइट व्हिच नाउ नोबडी थिंक्स अबाउट इट, बट ये सारे काम वी डेवलप्ड द फर्स्ट एपीआई फॉर शॉपिफाई फॉर अ कुरियर कंपनी इन अच्छा, पाकिस्तान इवन दराज 2014 भी ये चीज नहीं कर रहा था मतलब उस टाइम दराज पे, नहीं, just दराज only का तो this। खैर एक सिस्टम भी थोड़ा सा फर्क था, लेकिन जब हम लोगों ने ये सारा कुछ किया वो एक्सेल पे ही बैठे हुए थे 2014 में। ओके, राइट राइट राइट, यानी कि मतलब एक पूरा एक काइंड ऑफ एन इकोसिस्टम बनाया गया उस वक्त, जिसका मतलब आज उस लगेगा कि वक्त वो हाँ, कुछ भी नहीं है। वो वाला सिस्टम तो फिर लेपर्ड्स ने हम लोगों के साथ मिलके बहुत से बंदों को वो एपीआई दिए, जो भी शॉपिफाई पे कुरियर कंपनी जो भी बंदे आए, एंड देन इट स्टार्टेड अ चेन इफेक्ट जो उससे पहले नहीं था, जो उससे पहले सारा कागज पेंसिल वाला काम था। अच्छा उमर, इसमें और आप इसमें डिफिकल्टी आई थी कि मतलब कन्विंस करना बार बार कोरियर कंपनी को कि नहीं यार जैसे मतलब होता ना यहाँ पे, वी गोना वे द प्रोडक्ट आवरसेल्व्स, हमें आप पे एतबार नहीं है, तो आप आगे से बिल्कुल एक डिफरेंट सा एक आइडिया दे रहे हो कि नहीं हमने एक वे करके उसको, हमने कहा ये 300 ग्राम्स की टी शर्ट है या वट एवर यूज का, तो उस वक्त नहीं देखो सर कन्विंस उसके करने का बाद प्रॉब्लम था। कन्विंस क्या, हमने तो कर दिया, फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जी हमें यकीन नहीं है। तो वो जो पार्सल वाला बंदा था वो हमारे ऑफिस से चीज ले जाता था, उसके बाद वो अपने दफ्तर में जाके वजन करता था। तो अगेन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद डबल चेकिंग, लेकिन एटलीस्ट मेरा टाइम तो बचा ना यार। मेरा तो बंदा 6 बजे तक काम कर रहा है, वो बेशक जाके उसके साथ जो मर्जी करे, बट इनएफिशिएंसी है ना कि एक बंदा कर रहा, आप ऑडिट कर लो यार उसका। वो कहते थे नहीं जी हमने तो जाके फिर वजन कर लिया, फिर वो वजन और होता था मतलब एक दोबारा एक से चीज जाके। का वजन फिर से करना है, इट्स नॉट लाइक दिस के नहीं सैंपल। मतलब एक एक पार्सल का वजन दोबारा से होता। तो बस इसी तरह है ना सर, वो इन्फेंसी के डेज थे, हर बंदा एक दूसरे को ट्रस्ट भी नहीं करता था। कुरियर कंपनी कहते थे आप झूठे, आप कहते थे कुरियर कंपनी झूठी है, कस्टमर वो झूठा है। तो वो भी एक बहुत ज्यादा सीन था कि ट्रस्ट फैक्टर इज वेरी लिमिटेड इन पाकिस्तान, नोबडी ट्रस्ट्स एनीवन। तो हमें तो सबसे बड़ा चैलेंज चलो कुरियर कंपनीज का तो था ही, लेकिन आपको तो कस्टमर को कन्विंस नहीं कर सकते थे कि भाई ये जो वेबसाइट पे तूने टी शर्ट देखी है तुझे वाकई मिलेगी, क्योंकि व्हेन आई वाज स्टार्टिंग ऑफ तो मैंने भी ये कुछ कंपनी से चीजें मंगाई ऑनलाइन और मेरे साथ भी फ्रॉड ही हुआ। फ्रॉड हुआ। So for everybody who was doing business at that time, और अगर आप किसी अपने कस्टमर से पूछते थे हाँ जी ऑनलाइन चीज मंगाई, वो कहते थे नहीं जी फ्रॉड होता है। तो वो एक साइकी आज के दिन भी मुझे लगता है ये एक साइकी है पाकिस्तान के अंदर कि पीपल आर रिलक्टेंट टू बाय स्टफ ऑनलाइन। नहीं वैसे you're right, I remember I just went to a friend of mine, he has this shoes का business online, and मैं उसके पास गया and then he said me
the most surprising thing that any entrepreneur could have said मतलब dealing in the same business, कहता है यार मुझे यकीन नहीं आता लोग जो है वो ऑनलाइन बिजनेस खरीद के ऑनलाइन जो मेरा शूज है वो खरीद कैसे लेते हैं, कहते मैं तो कभी ना खरीदूं। एंड देन ही वाज सेलिंग द शूज, कहता कि तो मुझे साइज की मुझे वो तसल्ली नहीं होगी कि ये साइज मेरा है, मैं क्यों खरीदूंगा। सर ये एक इशू तो इस चीज में है ना, लाइक फॉर एग्जांपल आई बाय शूज, अब मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे 44.5 भी पूरा आता है, मुझे 43 भी पूरा आता है, मुझे 43.5 भी आता है। अच्छा अब आप कौन से जूते का कौन सा पूरा है, हाँ ये नहीं पता। I cannot really say like I wear 44.5 for Adidas, अब मुझे मेरा ख्याल है नाइकी का 43.5 आता है। अब दुनिया में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है तो हम क्या कर सके। फिर पाकिस्तान में भी आप अगर जाते हो तो वो कहते हैं जी बाटा का मैं 9 नंबर पहनता हूँ। अच्छा जी, अब बाटा का 9 नंबर है या अच्छा बाटा का भी 9 नंबर नहीं, पाकिस्तानी साइज 9 नंबर है। अच्छा अब वी डोंट नो इफ इट्स UK 9 और US 9 बिकॉज देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन। अब पाकिस्तान में स्टैंडर्डाइजेशन ही नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा पाकिस्तान में, कहूंगा दुनिया में ही नहीं है यार। देखो मैं अगर 43 नंबर पहनता हूं तो मुझे पूरी दुनिया के 43 नंबर पूरे आने चाहिए, मुझे नहीं आते। नहीं वही मेरा ख्याल है, वो तो हर बंदे का प्रॉब्लम है ना, जिसने भी फॉर एग्जांपल अगर बाहर से भी जूते मंगवाने आए, रिमेंबर मेरे कजन को बाहर से अगर जूते लेते हैं उन्होंने कहा यूएस का साइज बताना, यूके का ना बता दो। एक दफा यूके का बता के जो गलत हो गया वो साथ अपने। तो ये एक इश्यूज है। चलो हम लोगों ने गारमेंट्स में तो एटलीस्ट ये है ना कि हम छाती का साइज कहते हैं, अच्छा जी इंची टेप मार, जो तेरी फेवरेट टी शर्ट है उसको पकड़ और उसके हिसाब से ऑर्डर कर लो, तो वो तो एक वी क्रैक्ड द कोड। बट विद जूता वी कैंट, वो मेरे लिए भी बहुत मसला। अच्छा ऊपर नहीं क्रैक कर सकते, नहीं कर सकते बिल्कुल, ऑफ कोर्स वो मतलब इम्पॉसिबल है। अच्छा ऊपर ये बताइएगा कि आजकल भी आप मतलब yours is a business that is again heavily reliant on technology. आजकल आपके as an entrepreneur आपको क्या लगता है कि still what are some of the biggest gaps that you see in Pakistan कि यार ये टेक्नोलॉजी के इश्यूज एड्रेस हो जाते तो मेरा काम आसान हो जाता, या ये गवर्नमेंट पॉलिसी यहाँ पे आसान हो जाती तो मेरे लिए जिंदगी आसान होती। यार एक तो मैं ये कहूंगा कि हम लोग हर वक्त रोते हैं कि जी COD 90% COD 10% डिजिटल पेमेंट्स है। देखो आपने फॉर एग्जांपल वी वर वन ऑफ द फर्स्ट क्लाइंट्स फॉर किस्त पे, तो किस्त पे gave us an uplift of about 6-7% in digital payments, तो मुझे तो फायदा हुआ। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हर चीज दुनिया में इंसेंटिवाइज होती है भाई। आप आज अगर अमेरिका की ई कॉमर्स की पॉलिसी खोलो 97-98 के अंदर, जो ये बड़े रिटेलर्स ऑनलाइन बने हैं, इन लोगों के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं था। So if you bought TV in US in 98-99, it was cheaper than buying it from a store, क्योंकि सेल्स टैक्स ही नहीं था। पाकिस्तान में उल्टी चीज है, पाकिस्तान में वो कहते हैं जी आपने पूरा सेल्स टैक्स देना है, ठीक है, लेकिन अगर आप एलांतो में जाके खाना खाते हैं और क्रेडिट कार्ड देते हैं तो एक तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको 30% डिस्काउंट देती है, ऊपर से सेल्स टैक्स 17% के बजाय 5% हो जाएगा। तो फिर मुझे आप कहते हो जी, और फिर पूरी हुकूमत कह रही है जी डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होनी है। भाई जब तक इंसेंटिवाइज नहीं करोगे डिजिटलाइजेशन हो ही नहीं सकती। इधर पैसे बचा, मैं क्यों भाई मैं कैश दूंगा, मैं क्यों नहीं कार्ड इस्तेमाल करूंगा, मुझे फायदा होता है मैं कार्ड करता हूँ। तो जब तक आप इंसेंटिवाइज नहीं करोगे तब तक फायदा नहीं होगा, और वो हमारी गवर्नमेंट कर ही नहीं रही। राइट। ऊपर से क्रेडिट कार्ड कंपनीज का भी एक मसला है ना। सो फॉर एग्जांपल अगर इफ यू MDR जो होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, सो इफ यू गो टू अ रेस्टोरेंट they will charge you 1 to 1.5% of the total bill. अच्छा अब क्रेडिट, अब मैं अगर करता हूँ ऑनलाइन तो वो 2.25 से मतलब जितना छोटा स्टोर होगा उसको 3% भी चार्ज कर लेंगे। तो आप तो ई कॉमर्स में कौन सी पॉलिसी है जिसमें मुझे फायदा? अच्छा फिर टैक्स चोरी करने की बात कर लो, कैश में टैक्स भी ज्यादा चोरी होता है। ऑनलाइन में COD की भी पेमेंट है आपको, लेपर्ड या TCS या जो भी बड़ी कोरियर कंपनी उसने पक्का चेक देना। तो उधर तो मतलब आप सारे के सारे लूप होल्स जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स है उनके पास हैं और वो कर भी रहे हैं, और आप खिंचाई ई कॉमर्स की कर रहे हो और फिर कहते नहीं जी ये भी फ्यूचर भी है, तो आपने छोड़ा कहाँ? आपको उमर इसमें आपको लगता है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये चीज वेरी करेगी? मतलब PTI की गवर्नमेंट की पॉलिसीज डिफरेंट है, डू यू थिंक कि PMLN की जो है वो वही वाली चीजें जो है लेके चलेगी, और डू यू थिंक दे गोना कम अप विद समथिंग न्यू दैट्स गोना बी मोर digital entrepreneurs friendly?
यार ये तो अभी देखो उनकी गवर्नमेंट आई है, अब पता चलेगा। मैं इसका इतना पहले जवाब दे नहीं सकता, बिकॉज जो पहली गवर्नमेंट थी उसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा था। तो आई डोंट नो यार, ये तो टाइम के साथ ही पता चलेगा ना, मैं इसका जवाब आपको दे ही नहीं सकता। ठीक ठीक ठीक, चलें ठीक है। अच्छा उमर, मुझे ये बताएं कि आज तक सबसे सबसे बड़ी मिथ क्या है अबाउट एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स? व्हाट इज द फनीएस्ट थिंग दैट यू हैव एवर हर्ड? यार फनीएस्ट चीज तो एक ये भी है कि हम लोगों की बहुत दफा एक मुझे खैर लीगल नोटिस तो खैर आई बहुत ज्यादा है। मतलब एक लीगल नोटिस मुझे आया, एक बंदे ने पता नहीं कुछ 4 या 500 रुपए की टी शर्ट खरीदी, तो उसका मैसेज आ गया कि जी मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे 500 रुपए की टी शर्ट भेजी है और मेरा लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तो क्योंकि जी आपने पोलो रिपब्लिका ब्रांड की टी शर्ट भेजी है और ये तो रैल्फ लॉरेन है ही नहीं, तो ये आपने अब मुझे अब मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ, मुझे आप 1 लाख रुपए दें क्योंकि मैं ये अच्छा अच्छा। अब मैंने उधर लिखा भाई ट्रेडमार्क मेरा यूके में कंपनी रजिस्टर्ड है पोलो रिपब्लिका हूँ, अगर अब तूने ये समझना है कि रैल्फ लॉरेन तो व्हाट कैन आई डू जी। तो मैंने कहा यार अब इट्स अ रजिस्टर्ड कंपनी ना, अब आपको अगर एक मसला है पढ़ लो भाई, मैंने लिखा है कहीं रैल्फ लॉरेन नहीं जी। तो ये बहुत ज्यादा इश्यूज लोगों के हैं, एंड देन अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी लाइक ओके मतलब ये जी रैल्फ लॉरेन वाली क्वालिटी नहीं है भाई, मैं कह रहा हूँ ये है, मैं तो सिर्फ इट्स लाइक अगेन उनकी ऑब्वियसली क्वालिटी बहुत अच्छी, बट देन दे आर सेलिंग अ पोलो शर्ट फॉर लाइक 20,000 रुपीज, वी आर सेलिंग इट फॉर 500 रुपीज। अब जमीन आसमान का फर्क है, मतलब 40 गुना बड़ी प्राइस है उसकी और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो, नहीं, तो वो उसको एक मतलब बहुत ये था ज्यादा कि मुझे 500 रुपए में मुझे जो है रैल्फ लॉरेन मिल रैल्फ जाएगा। लॉरेन मिलेगा। हाँ, और हमने तो कभी कहा भी नहीं है कि रैल्फ लॉरेन मिलेगा यार। तो वो फिर इस तरह के लीगल नोटिस बहुत ज्यादा आए हैं। फिर कोई बंदा कहेगा कि मैंने जी ये 6 महीने शर्ट पहनी है, मैंने 300 रुपए की टी शर्ट ली थी, ये जी 6 महीने पहनी है, देखिए इसका रंग उड़ गया। यार मैं तुम्हें क्या पूरे साल की गारंटी दूंगा यार, कि लाइफ टाइम गारंटी तो तुम्हें 300 रुपए की टी शर्ट की नहीं मिल सकती ना, मैंने जी धोई है, मैं इसका क्या करूँ। तो इस तरह की बड़ी स्टूपिड स्टूपिड आते हैं लोगों के मैसेजेस के, व्हाट कैन यू डू यार। वो फिर चीज एक बंदे ने मुझे अभी भी याद है फोटो भेजी हम लोगों को, कि वो जो लोग बाहर कपड़े लटकाते हैं ना, तो उसने बाहर कपड़े लटकाए, शर्ट पहनी, तो वो लकीर बन गई, वो जो तार की होती, ये जी तार की बनी। अब उसको बंदा क्या कहे यार, तो फनी क्या है, ये तो हर रोज का काम है, हमें इस तरह के कस्टमर्स आते हैं। बिकॉज पाकिस्तान में यही है कि यार इनकी बेइज्जती करोगे, सोशल मीडिया पे जाओगे, ग्रुप्स में लिखोगे, इनको थोड़ा सा ब्लैकमेल करोगे तो कुछ ना कुछ निकल आएगा। फिर हम भी यार बहुत दफा तो ये होता है जान छुड़ाने के लिए कहते हैं अच्छा यार ये लोग 500 रुपए का वाउचर है, हमारी जान छोड़ दे। बिकॉज व्हाट कैन यू से टू दिस गाय जिसने आपका बाहर धूप में लटकाया हुआ है कपड़ा, एक तो रंग उड़ना ही उड़ना है। उड़ना है हम उसका लोगों ने भी केयर कोई इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कि भाई वॉश टेस्ट करो, वॉशिंग मशीन में डालो, ड्रायर में डालो। पाकिस्तान में 45 डिग्री की धूप है, इधर कौन सा, इधर हुगो बॉस भी होगा उसका भी रंग उड़ना है, ये तो मैं गारंटी कर सकता हूँ। बैलेंसियागा की शर्ट रखोगे उसका भी रंग उड़ना है, क्योंकि इतनी धूप है यार। जाहिर बात है, वो तो एक्सपोजर में कोई भी शर्ट होगी, इतनी गर्मी में उसका तो रंग वगैरह उसकी क्वालिटी तो तो खराब। बस और वो ये कहते जी एक्सपोर्ट क्वालिटी है तो रंग ही नहीं उड़ सकता, एक्सपोर्ट क्वालिटी का तो रंग ही नहीं उड़ सकता। दे हैव अ लॉट ऑफ मिथ्स जो आपने मुझे कही, तो बहुत ज्यादा। नहीं, ऑफ कोर्स। सो डू यू थिंक कि मतलब हमें मतलब जरूरत है टू एजुकेट द कंज्यूमर्स सर अबाउट? हम तो एजुकेट कर रहे हैं, हम तो साइज चार्ट बता बता के मर जाते हैं। वो कहता है जी मैंने आउटफिटर का मीडियम मंगाया था, मैं तो मीडियम पहनता हूँ, आपका मीडियम मुझे पूरा नहीं आता। फिर हम कहते हैं भाई ये एक्सपोर्ट का ऑर्डर था, ये एक्सपोर्ट के साइज हैं, ये वेबसाइट पे साइज। सर वेबसाइट आप पाकिस्तान में चीज बेच रहे हैं तो आपने बाहर के साइज चार्ट क्यों लगाए हैं? अब कहाँ मैं क्या कहूँ भाई बंदे को, वो वहां पे मतलब यू कैन कनेक्शन नॉट। बनाना। आई कैन जस्ट मतलब थिंक कि यार आई एम जस्ट वंडरिंग कि हाउ डिफिकल्ट वुड दैट बी फॉर अ पर्सन टू अंडरस्टैंड कि यार ये एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट बना हुआ है, इसने बाहर जाना है, इसको बाहर वाला साइज लगेगा। आपने अपने अकॉर्डिंग उस चीज को देखना, चार्ट्स भी जो है वो मेंशन्ड है। हाँ अब हाँ, तो मैं वो देखता कहता हूँ है कि नहीं भाई आप वो वीडियोस वगैरह भी बनाते हैं जब आपके नए प्रोडक्ट्स आते ना, सवाल ही नहीं पैदा होता कोई बंदा इस चीज को मान जाए। वो कहता है भाई आप पाकिस्तान में बेच रहे हो ना ये चीज, हैं। उनका फोकस ये। अच्छा वी डिड दैट एज वेल, हम लोगों ने ये वाला सारा काम भी किया। हमने एक लंबा प्रोजेक्ट था कि सारी शीट शर्ट्स का हमने कहा अच्छा जी पोलो रिपब्लिक का जो हमारा अपना ब्रांड है उसका मीडियम जो है ना, दैट इज गोइंग टू बी मीडियम फॉर एवरीथिंग। ठीक है, ठीक है। गैप की अगर टी शर्ट लार्ज है लेकिन वो मीडियम वाले साइज को पूरी आती है ना, तो हमने वो मीडियम करके बेची। अच्छा जी, अब कस्टमर
ऑर्डर किया जी गैप मीडियम, उसको शर्ट का लेबल लगा हुआ है लार्ज का, उसने फटा डाल दी। उसने कहा आप अंधे, आपको पता नहीं है, मैंने तो मीडियम मंगाई है, लार्ज क्यों लिखा हुआ। हमने फिर लिखना कि जी आप साइज लेबल जो गले पे लगा हुआ है उसको इग्नोर करें, आप इंची टेप से मेजरमेंट करें। वो कोई बंदे ने वो मेजरमेंट नहीं की, फिर हम वो भी नहीं स्टैंडर्डाइज कर सके। उसमें तो हमें इतनी गालियां पड़ी कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। वी हैड टू एक्चुअली शट डाउन आवर कस्टमर सपोर्ट टेलीफोन लाइन। ओह माय गॉड। वो यही कहते थे हमने मीडियम मंगाया, आपने लार्ज क्यों भेजा या आपने स्मॉल क्यों भेजा, क्योंकि हम किस तरह स्टैंडर्डाइज करें। हम इसी तरह स्टैंडर्डाइज कर सकते थे कि यार ये मीडियम है तो आप उसकी चेस्ट 22 इंच होगी, वो बेशक स्मॉल हो वो लार्ज हो, हमने उसको मीडियम कंसिडर कर। आप लेबल ना देखें, आप इंची टेप मारे। वो कहता था भाई क्यों इंची टेप मारे मैं आप, क्यों करूँ ये काम। खत्म होगी बात। तो फिर हम फंस गए, दोबारा से फंस गए, उसमें बहुत ज्यादा गालियां पड़ी थी। यानी कि बेसिकली फिर वही बात है ना कि आपको, मेरे ख्याल है यहाँ पे एक्सेसिव कंज्यूमर सपोर्ट होना बहुत जरूरी है पाकिस्तान में, वरना अंडरस्टैंड असल करना, में अपना बिजनेस सक्सेसफुल करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। एक्सेसिव इस तरह भी कि बेसब्री बहुत है ना, बंदे ने चीज मंगाई है तो उसने, अगर आपने उसको फेसबुक पे मैसेज नहीं किया, उसने व्हाट्सएप कर देना, व्हाट्सएप पे नहीं किया उसने ईमेल कर देनी, ईमेल नहीं किया उसने इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। फिर उसके बाद अगर उसको टेलीफोन नंबर आपकी सपोर्ट का तो पता ही पता है, किसी बंदे के थ्रू उसने आपका नंबर निकाल लेना और उसने कहना जी मैंने ये ऑर्डर किया है जी, इसका आप ब्लू की बजाय रेड कर दो। बंदा कहता है यार मतलब व्हाट द हेल भाई, तूने अगर ईमेल कर दी हो जाएगा। तो ये वाले काम बहुत ज्यादा है जो कि फ्रस्ट्रेटिंग है, मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, लेकिन ये अब करने पड़ते हैं भाई। अच्छा उमर, ये मुझे बताएं कि जब आप देखते हो कि एक ऑनलाइन बिजनेस है जैसे आपका, और एक ऐसा बिजनेस जिनके स्टैंड अलोन आउटलेट्स हैं, उनको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या, ड्रॉबैक्स तो पता है, हमने तो पढ़ पढ़ के भी थक गए, पढ़ा पढ़ा के भी थक गए, इवैल्यूएट करके भी थक गए, लेकिन व्हाट डू यू थिंक इज दैट वन बेनिफिट जो वहां पे जो है सबसे ज्यादा मिल रहा है लोगों को एज कम्पेयर टू योर बिजनेस मॉडल, जिसका आउटलेट वही है? यार टच एंड फील का तो मैं ये कहूंगा ना कि जिसका फॉर एग्जांपल खाड़ी और गुल अहमद और सैफायर, तो उनका जो एक एडवांटेज इनहेरेंट है, एक तो ब्रांड वैल्यू उनकी ज्यादा, बिकॉज पीपल कैन सी द ब्रांड, पीपल हैव ट्रस्ट इन दैट कि जी ये दुकानें हैं इनकी, वी फील के वी आर इन सेफ हैंड्स, क्योंकि स्टोर प्रेजेंस है, हम प्रोडक्ट की क्वालिटी फील कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हमें पता है व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। अब हमारा ये है कि टच एंड फील वाला तो सीन ही खत्म हो गया। किस तरह करेगा वो, तो हम वीडियोस बना लेते हैं, लेकिन वो टच एंड फील वाली गेम खत्म हो गई है, वो नहीं हम उसको कन्विंस कर सकते, व्हिच इज अ बिग इशू फॉर अस। और मैं वही कहता कि उनके पास ये दोनों चीजें हैं, यू कैन गो टू देयर आउटलेट, यू कैन जस्ट अगेन टच द प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड इट एंड देन बाय इट, एंड इवन इफ मतलब यू वांट टू बाय ऑनलाइन, वो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। अब तो एवरीबॉडी इज वेरी वेरी ऑनलाइन। तो फिर इसका मतलब हैव यू thought of a way to address this problem, या it's okay, नहीं जरूरत नहीं यार, हम लोग बहुत दफा सोचते हैं, बट व्हाट आई फील लाइक इज कि शायद एक आधे रिटेल स्टोर की प्रेजेंस से कोई ना कोई फायदा हो जाएगा, बिकॉज आवर नंबर वन कंसर्न इज कि देयर इज अ गाय इन इस्लामाबाद। पाकिस्तान में थोड़े थोड़े ये मसले हैं ना कि अब उसने शर्ट मंगाई, उसको शर्ट पसंद है, उसको साइज पूरा नहीं आया, उसने कहना है जी ये मीडियम साइज मुझे पूरा नहीं आया, मुझे लार्ज चाहिए, तो मैंने वापस नहीं भेजना। आपकी कोई दुकान है, अब वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है ना, वो है कंसर्न, एंड वी नो दैट इट्स अ कंसर्न। सो इफ देयर इज एन आउटलेट इन इस्लामाबाद और इन लाहौर और इन कराची, you can at least go there and get it fixed. हम नहीं कर सकते उसको, it's a big issue। तो उसमें मुझे लगता है कि कस्टमर एक्सपीरियंस में एक मार पड़ती है हमें, because he likes the product, he feels that the price is very good, लेकिन अगर एक बंदे को चीज पूरी नहीं है तो कस्टमर एक्सपीरियंस तो खराब हो गया ना। तो आपने टी शर्ट मंगाई, आपको 400 रुपए की बहुत अच्छी टी शर्ट मिल गई, आपको कलर भी पसंद है, सब कुछ पसंद है, लेकिन साइज पूरा नहीं आया, कस्टमर एक्सपीरियंस फारे हो गया ना यार। ट्रू ट्रू, ये बात तो बिल्कुल मतलब अंडरस्टैंड करने वाली है। अच्छा उमर, और हम मार इधर से ही खाते हैं सबसे ज्यादा, साइज चार्ट से। For us the number one concern is that our customer doesn't understand। पुराने कस्टमर्स भी हमें पता है क्या कहते हैं, जी मैंने 10 शर्टें मंगाई, आपकी हमेशा 7 ठीक होती हैं, 3 बड़ी होती हैं या छोटी होती हैं। फिर आप कहते हो कि साइज चार्ट देखा, साइज चार्ट अच्छा सारों का फर्क होता है, हमने तो एक देखा था। अब वहां बंदा कहता है यार 10 शर्टें, 10 के 10 साइज चार्ट तो भाई देख लेता। आपको, मुझे हर रोज ईमेल आती है जी मैंने 10 शर्टें मंगाई हैं, 6 पूरी आई हैं, 4 नहीं आई। मैं उसको क्या जवाब दूं यार। मेरा ख्याल है आप इसमें ना एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज अपना जो है ना वो साथ सेंड किया करें।
वही है यार, we have put a line in every product that please refer to the size chart before ordering. अब इससे ज्यादा मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो फिर वही ना कि मतलब आप तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हो, लेकिन जब कस्टमर जो है वो पढ़ने को तैयार ही नहीं है वो वाली चीज, मुझे लगता है कि यहाँ पे कंज्यूमर का ज्यादा फोकस जो है वो वही है, जैसे कि बस हमने जाके प्रोडक्ट को देखना है, एंड फॉर दैट वो प्रोडक्ट फोटोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट देन दैट्स इट, नोबडी गोस थ्रू द डिस्क्रिप्शन, वेरी फ्यू पीपल मे बी, एंड दोज हु गो थ्रू इट उनको। अच्छा, सो आई वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स नाउ। यार next for us at the moment is again developing the range जो कि हमारे we have found some niches which we think के customers को बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको थोड़ा सा और affordable करने की कोशिश कर रहे हैं, and then we don't want them to get out of stock, मतलब उस उन chains के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि यार हमारी बहुत ज्यादा सेल लॉस हो जाता है बिकॉज वी आर नॉट एबल टू डू द सप्लाई चेन इन टाइम। तो अपने सिस्टम्स को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि वी सी के वी कैन बी प्रॉफिटेबल हियर, वी कैन डू स्टफ हियर, बट वी आर नॉट डूइंग इट। तो अपनी बिकॉज इट्स सच अ थिन मार्जिन बिजनेस दैट वी आर डूइंग के आई फील के हमने सेल्स टैक्स भी पूरे देने हैं, हमने सीओडी का भी काम करना है, हमने हर चीज करनी है, तो पैसे तो मुझे बचते नहीं है। Again, we are doing good volumes, but when we look at the profitability of the company, we are doing it's non-existent to be honest. हम लोग स्केल कर रहे हैं, हम बढ़े जा रहे हैं, सेल हो रही है, लेकिन जेब में पैसे तो नहीं जा रहे ना मेरे, तो वो मेरा थोड़ा सा फोकस प्रॉफिटेबिलिटी वाली साइड पे भी है। और मतलब वो कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता होगा यार कि मतलब मैं चीज बेच ही जा रहा हूँ लेकिन इसके अंदर मुझे प्रॉफिट नहीं है, सो आई हैव टू नहीं हो रहा वॉल्यूम्स, फिर जाएंगे कुछ बचेगा मुझे। ऐसे ही है, और हम लोग वॉल्यूम्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं, और उसके ऊपर भी देखो अब गवर्नमेंट हर चीज का रेट बढ़ जाता है यार, आप काम करते हो सीओडी की वैल्यू बढ़ जाती है, वो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लेते, फिर फेसबुक महंगा हो जाता है, ठीक है, फिर ये सारी चीजों के मसले ही है ना यार, हर चीज महंगी हो जाएगी, पेट्रोल महंगा हो गया आपका रेट बढ़ जाता है। तो कितना डिस्टर्ब करता है आपको, मतलब प्राइसिंग वगैरह में बार बार प्राइसेस यार चेंज प्राइसिंग वगैरह नहीं, हम बार तो प्राइसेस वैसे टू बी ऑनेस्ट नहीं चेंज करते, हमारे जो पुराने प्रोडक्ट्स होते हैं वी कीप द सेम प्राइस, क्योंकि हम कहते हैं यार हमने खरीदा भी तो सस्ता है ना, लेकिन जब नया प्रोडक्ट आता है तो फिर प्राइसिंग डिस्टर्ब होती है। अब डॉलर महंगा हो गया या पेट्रोल महंगा हो गया, अगर हमें चीज ही महंगी मिली है तो फिर मैंने महंगी लगानी है ना यार, मैं उसको किस तरह सस्ता लगा सकता हूँ। अच्छा, आपको वैसे ये इसमें जब मैं एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स को जब देखता हूँ मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एज, एंड एज यू मेंशन कि अगर आपको एक चीज सस्ती मिली है तो आप सस्ती उसको सेल कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट लेफ्टओवर्स का सबसे बड़ा यूएसपी इन माय ओपिनियन इज के मतलब यू चार्ज इकोनॉमिकल प्राइसेस and is trying to make the whole industry sustainable by selling the products that you are selling, ठीक है, and at the same time they're good enough, तो लेकिन लेकिन ये यूएसपी जो है फिर डिस्टर्ब तो होगा जब सब चीजें जो हैं महंगी होंगी, तो योर अगेन आपका जो दूसरा कंपेटिटर है उसके साथ आपका गैप तो फिर कम होना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर ये डज दैट आई मीन स्केयर यू समटाइम्स? नहीं, लेकिन मुझे ये भी फील होता है ना कि अगर ये वाली एग्जांपल आउटफिटर्स के साथ होती है तो आउटफिटर्स अगेन प्राइसिंग वाइज बिकॉज इट्स अ मच मोर प्रॉफिटेबल कंपनी देन अस, तो वो शायद 5-10% पे खुश नहीं होते, वो कहते हैं जी मार्कअप अगर होएगा तो 100% से कम हमने नहीं करना। तो व्हेन यू लुक एट द प्राइसेस तो वो 1000-1200 रुपए की टी शर्ट बेच रहे हैं तो हम तो 400-500 रुपए की बेच रहे हैं ना, तो फिर भी 700 रुपए का फर्क है, तो वो गैप तो बढ़ ही रहा है। और अगर आप इन्फ्लेशन देखते हो और अगर आप मार्केट की तरफ देखते हो तो फिर पीपल आर लाइक यार मैं शायद पहले मैं शायद 800 रुपए की आउटफिटर्स की टी शर्ट अफोर्ड कर सकता था, अब मैं 1200 की नहीं कर सकता, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, बट द प्रॉब्लम विद अस इज दैट बिकॉज वी वांट टू बी इन दैट लोअर प्राइस ब्रैकेट, तो हमारे मार्जिन फारे हो जाते हैं। अब हम कोशिश ये करें कि हम उन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करें, उन चीजों के ऊपर ज्यादा एफिशिएंट हो जिसकी हमें सेल ज्यादा मिलती है, जिसकी आपको वॉल्यूम ज्यादा मिलता है, तो वो तो फिर हम अपने प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, तो भी सबको तो पसंद सिस्टम्स इस तरह के ऊपर कर रहे हैं कि चलो जी टी शर्ट की अगर रेंज है, पोलो शर्ट की रेंज है, इन चीजों के ऊपर जरा ज्यादा काम हो रहा है, तो वी डेवलप सिस्टम्स दैट वी कैन बी इकोनॉमिकल। क्योंकि फोकस पहले तो ये था ना कि जो चीज सस्ती मिली लगा के फारिग कर दिया, बेचो 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 बेचो, बट नाउ वी आर फोकसिंग कि हम उन चीजों के ऊपर फोकस करें जिसमें हमारी सेल भी ज्यादा है, मार्केट में जो अवेलेबल है उसके ऊपर काम ना करें, वर्क ऑन आवर नीशेस। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। अच्छा उमर, थोड़ा सा इस पे अब फिर योर स्टिल इज अ स्मॉल टीम एज यू मेंशन्ड,
But again, then you must have gone through the hiring and the recruiting and the firing process over and over again. What do you think is that one skill that you would want to see in a person who's applying for a job at your company? क्या देखते हैं और जो नजर नहीं आता सबसे ज्यादा, बहुत मुश्किल से वो बंदा मिलता है, उसके अंदर वो क्या स्किल होता है? यार मेरे हिसाब से एक बंदा आई फील इनिशिएटिव कि जो मुझे बंदे मिलते हैं ना ज्यादातर वो होते हैं कि जी आप बता दें तो हम करते हैं. They don't come up with solutions themselves. Cog and machine वाली बात. आपने उसको कह दिया ना, हाँ वो बस ये है कि हाँ भाई ठीक है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं कर दूंगा. अच्छा, and they are not going to go above and beyond their responsibilities. देखो आप कंपनी की प्रोग्रेस तभी करते हो जब आप इनिशिएटिव लो, आप चीजों की, आपको एक प्रॉब्लम नजर आ रही है, आप जाके उसका सॉल्यूशन ढूंढने की तो कोशिश करो. So finding those people is super hard, and I feel like in my organization there are very few people who actually come up with solutions and who actually discuss कि ये हमें मसला है. वो तो बताते ही कोई नहीं है. होएगा मतलब कंप्यूटर खराब हो गया, हाँ कंप्यूटर खराब हो गया, बताना ही नहीं है किसी को कंप्यूटर खराब हो गया. टेलीफोन लाइन खराब हो गई तो मुझे किसी बंदे का फोन आएगा कि जी टेलीफोन लाइन खराब. मतलब मैनेजर्स तो आपको हमने सारी जगहों पर रखे हुए, लेकिन मैनेजर्स भी ऐसे ही मतलब वो ड्राइव नहीं है, बेसिक मतलब है ही नहीं. कम डाउन टू समथिंग तो वो ड्राइव होगा उसको कहना कि यार इसमें मतलब ये करने की चाहत नहीं, कमिटमेंट नहीं है. यही ऐसे ही है. एंड आई फील लाइक कि फिर बंदे की ग्रोथ का मसला है. फिर किस तरह ग्रो करेगा? मेरी कंपनी में नहीं ग्रो कर सकता. मैं तो सीधी मुंह पे बात करता हूँ. A guy who is not going to go above and beyond his responsibility is never going to grow at Yellow. Again, फिर जिसने आना है, आपकी है. Sorry, please continue. नहीं मैं तो यही कहता हूँ. अब एक बंदा है कि वो अब यही करी जा रहा है. He is not bringing up anything new to the company. I don't feel कि he is going to go places, because for me we have to be ahead of the curve all the time. तो वो जो बंदा है वो आके कुछ ऐड तो करे. अगर आगे उसने फोटो ही खींचनी है या डिस्क्रिप्शन ही लिखनी है या मतलब if you're not going to fix the system, उसके लिए डिस्क्रिप्शंस तो फ्रीलांसर्स भी लिख देंगे आगे. हाँ, तो मुझे फिक्स द सिस्टम जब तक नहीं करेगा, जो मेरे पेन पॉइंट्स हैं उनको जब तक रिजॉल्व नहीं करेगा, तो फिर मैं उसको ग्रोथ किस तरह दे सकता हूँ? ग्रोथ किस तरह? एंड आई थिंक there are so many avenues for growth in a company like yours. इसका मतलब इतना स्ट्रॉन्ग डिजिटल फुटप्रिंट है across the country, revenues promising है, दो वॉल्यूम बेस्ड हैं, लेकिन अगेन मतलब then growth is possible now that you're considering कि भाई हमारे outlets होने चाहिए where people can go touch and feel the product. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ओवर, and I'm asking you because के हम अब इस डिबेट में बहुत ज्यादा आते हैं, especially the people in academia, even the people in industry, हम ये वाली चीज बार-बार डिस्कस कर रहे हो. And then you have gone to Edinburgh, you went to the UK and did your masters over there and bachelors as well. How important do you think in today's world is for someone to have a university degree? यार, okay, this is a very very interesting question, because मैं थोड़े दिन पहले ही गैरी वायनरचक की वो एक डिबेट देख रहा था. some guy asked कि जी मेरा बेटा अनडिसाइसिव है, उसको नहीं समझ आ रही कि उसने कोर्स क्या करना है यूनिवर्सिटी में, तो what should I do? You know, but I feel कि college degree is very important, 4 years degree is very important. तो उसने कहा कि send him to Europe for 4 years, because at the end of the day it's an expensive holiday. मुझे ये feeling आती है कि it is more about life skills, it's more about being street smart, it's more about ideas. ठीक है, हाँ आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, तो I would say कि 100% you have to go to university. But if you want to be a business person, I don't feel कि university is that important. I feel university, शायद अगर मेरा बच्चा हो और वो कहे कि जी मैंने 4 साल के लिए बिजनेस की डिग्री लेनी है, and I have to weigh between sending him to Europe for 4 years and traveling for 4 years, I would definitely send him to Europe. मैं कहूँगा हाँ 4 साल तो यार छुट्टियों पे जा, या go backpacking, because it tells him about money management, पैसे की decision making. उसने अपने आप का सर्वाइवल करना है, उसने जहाँ रहना है, जो करना है, वही लाइफ स्किल्स आप यूनिवर्सिटी में बनाते हो ना. सोशल स्किल्स भी इसी तरह की होती हैं, आपकी दोस्ती यारियां होती हैं. आप यूनिवर्सिटी में भी एक ही सिमिलर एज के लोग इकट्ठे बैठे हुए होते हैं. तो जब आप ट्रैवलिंग बैकपैकिंग या जो भी करते हो, you get to do the same things, you get to feel the same experiences.
It might actually turn out to be cheaper. क्योंकि अमेरिका के अंदर अगर आपने अपने बच्चे को बेचना तो we are talking about hundreds of thousands of dollars now. And then you're तो फीस ही बहुत ज्यादा है. हाँ, और आप डेट में भी जाते हो. वहाँ तो इसमें तो ब्रेक में डेट में भी जाते हो. तो ये वाली एक आई फील कि दिस इज और ऊपर से आप देखो ना, आप सारी स्किल्स तो गूगल पे सीख सकते हो, यूट्यूब पे सीख सकते हो. स्किल शेयर, ठीक है जी. फिर कोर्सेरा, इतने ज्यादा. फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू डू कोडिंग, देयर आर सो मेनी प्रोग्राम्स ऑनलाइन जिसमें आप कोडिंग सीख सकते हो. और अब तो वो वाला सीन ही नहीं है ना यार कि आपने यूनिवर्सिटी जानी है तो आपको ये कोडिंग आनी है. एआई अगर आपने सीखनी है तो आपने यूनिवर्सिटी में जाके सीखनी. देयर आर रिमोट स्कूल्स एंड यू कैन डू इट ऑनलाइन. लेकिन उमर, तो मेरा थोड़ा सा ये follow-up question to some extent, do you think कि discipline matters in this? मुझे तो लगता है. I don't feel कि यूनिवर्सिटी में डिसिप्लिन होता है यार. सारे फुट्टे नहीं मारते थे. आप सारी क्लासें पढ़ते थे अपनी, या हाँ जी आपने एग्जाम पढ़ के एक टेस्ट दे दिया तो दैट मींस डिसिप्लिन. आई डोंट फील दैट्स डिसिप्लिन. नहीं, आई मेंट के क्लासेस जाना, वो एक पूरा स्ट्रक्चर जो है सेमेस्टर का गुजारना, वो वाली बात. वो मुझे लगता, अच्छा क्योंकि मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कोर्सेज करने की ऑनलाइन, और मुझे ये लगता है कि हाफ वे थ्रू में जो है ना बस के तो अब काफी हो गया यार, बाकी नहीं 50%. आपका डू यू पुट योर होल, मतलब आपका दिल होता है ये करने का. मुझे ये लगता है कि जिस बंदे का कोडिंग सीखनी होती है यार. आई मेट सो मेनी पीपल इन टर्की. हम लोग ये पाक टेक समिट पे गए थे टर्की में, तो मुझे वहाँ कुछ लड़के मिले. एक लाहौर का ही लड़का मुझे मिला, और वो UCP ड्रॉप आउट है, एंड ही मेक्स अबाउट $1-2 million in revenue every month. And he learned everything online. ठीक है जी. फिर उसके बाद एक बंदा है, वो ये कौन है यार, खान एकेडमी का एक, पता नहीं द वर्ल्ड स्कूल और पता नहीं क्या. So he is the chief architect of that company, and he makes about $400,000, and he is from पिंडी भटिया. लेफ्ट स्कूल एट 15, गवर्नमेंट स्कूल 15 साल में छोड़ के उसने कोडिंग सीखी, और अब वो टर्की बैठा हुआ. वो कहता है मेरा अमेरिका का वीजा नहीं लगा, तो दे हैव पुट मी इन टर्की, और मैं उधर से काम कर रहा हूं. आई फील लाइक कि देखो ना, ये तो पाकिस्तान की एग्जांपल्स आपको मैंने दे दी हैं. तो नहीं, आई थिंक वही वाली बात है, एक तो 15 साल गया है लर्निंग द स्किल. इट कम्स टू हाउ हंग्री यू आर. जिन बंदों की हंगर होती है यार, वो कर ही लेते हैं ना. देखो पिंडी भटिया बैठ के उसने कोर्स सीख लिए. बट वंस अगेन, शायद देखो पिंडी भटिया में और बाकी जगहों में एक्सपोजर तो फर्क है ना यार. लाहौर का लड़का और पिंडी भटिया का, या लाहौर का लड़का और फैसलाबाद के लड़के में फर्क है. सो आई फील लाइक यूनिवर्सिटी इज मोर अबाउट एक्सपोजर. मैं भी बाहर इसी वजह से गया बिकॉज एक्सपोजर. यहाँ तो कुछ भी नहीं था. तो व्हाट आई फील लाइक इज इफ यू हैड सेंट द किड टू यूरोप, और इफ यू हैड सेंट द किड टू US जस्ट टू ट्रैवल अराउंड, उसको तो नहीं एक्सपोजर मिल जाना. ट्रैवलिंग इन इटसेल्फ में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस आपको मिलता रहता है, मुख्तलिफ लोग मिलते हैं आपको. कल्चर यार रिस्पांसिबिलिटी की आप बात कर रहे हो. फ्लाइट मिस हो गई, पैसे कम हो गए, यू हैव टू मेक योर ओन बजट. यू हैव टू डिसिप्लिन योरसेल्फ कि भाई मुझे अगर $1,000 महीने में मैंने इस्तेमाल करना और मैंने इससे ज्यादा नहीं करना, तो वो भी डिसिप्लिन ही है. तो मुझे ये भी फीलिंग आती है ना, लाइक आई वुड से कि 99% ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान, अगर आप किसी के बाप के पास भी जाओगे और उसको कहोगे भाई 4 साल यूनिवर्सिटी में आपके बेटे का $2 लाख लगना है, और अगर आप उसको बाहर भेजते हो 4 साल ट्रैवलिंग के लिए, तो उसका $1 लाख लगना है या $2 लाख ही लगना. किसी बाप ने ये नहीं कहना कि इसको बाहर ट्रैवलिंग करने भेज दो. वो ये कहेंगे नहीं पुत्र जाओ यूनिवर्सिटी पर. सो यू नो, ये एक हमारे दिमागों में इस तरह की चीज चली गई है. सही, ठीक है, बिल्कुल सही. थैंक यू सो मच उमर यार, थैंक यू सो मच. आपने टाइम निकाला. लोगों को तो नहीं पता चलेगा जब तक वो ये देखेंगे, बट इट इज ईच सेकंड डे उमर इज वर्किंग एंड ही हैज मेड मी वर्क टू. We really enjoyed speaking with you, Umar. इतनी ज़्यादा insights with regards to export leftovers and the entire clothing industry, वो काफी insightful रहा है ये सारा. And again, take good care of yourself. और जब आपका नया launch होगा, जब आपके stores launch होगा, इंशाल्लाह ताला we will be the first ones to visit. Thank you यार. Thank you. Take care. Enjoy. Bye.